है आप सभी का आज की कक्षा में। डेफिनेटली अगेन टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस ओवर द चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, in which we have to discuss a situation which is going to be represented under the frame of a section or with the help of a story of village Palam. Actually in my previous session I told it to you that it's tough for all of you brighter students that I will explain or I will just deliver the story. So I told it to you that it's your duty that for 1 or 2 times just study the story of the village Palampur. And in my previous session I started to give you an explanation related to the chapter. But today's morning I thought that it's okay, it's perfect according to my side that I am giving you the summary or the content fact related to the chapter. But I decided that I will explain some facts, the important content of the story. Up to previous session we discussed up to that situation in which I told it to you that basically there are 3 types of farmer: very poor farmer, middle segment farmer and rich farmer, in which I told it to you that the people of Punjab, the agriculturist of Punjab is going to be considered as a rich class farmer, जबकि भारत की जो 80% आबादी है जो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं वो निम्न श्रेणी से आते हैं। कारण भौगोलिक भूभाग कुछ इस प्रकार से रहा है कि जमीन ज़्यादा नहीं मिलता है और हम लोग अपने लिए कुछ विशिष्ट नहीं कर पाते। Before moving toward the next important thing what we have to discuss, now I just want to give you the summary of the story. Actually, by the help of the story of Palampur, our board just want to express the feeling or situation of the people of India, those who are living in villages. And according to the story, it is very clear that 75% of the people of village Palampur is associated with farming and 25% of the remaining people are involved in other things. अब देखो चीजें बड़ी स्पष्ट हो रही हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, इसमें चर्चा है इस कहानी में कि 75% लोग जो हैं वो कृषि कार्यों से जुड़े हुए और 25% जो लोग हैं वो अन्य कृषि कार्य मतलब गैर कृषि कार्य से, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क से जुड़े हुए। पहली चीजें तो ये तय। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैंने पाई इस कहानी में वह यह है कि आफ्टर गिविंग द डिटेल्स दैट हाउ वी बिकम कैपेबल टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप ऑन द लिमिटेड लैंड, इस पर चर्चा हुई बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। तीसरी चर्चा जो आपकी आंख खोलने के लिए काफी है, इन विच दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस, दे आर ट्राइंग टू डिलीवर अ मैसेज टू द पीपल दैट इट्स नॉट ट्रू कि भाई हम लोग सिर्फ 1 या 2 फसल लगाए, जिसके तहत उन्होंने बताया कि अगर हम बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं, देन डेफिनेटली वी विल यूज द वैकेंट लैंड। जब हम लोग इन फसलों को काट लेते हैं
तो इन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर वी कैन यूज दैट लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज, एंड आफ्टर दिसंबर when we will get the potatoes, then again we can use the same land for the production of wheat in the winter season. So आप देख रहे होंगे कि ultimately one line that should be very clear, that they want to give you the information that we can use the same land for different kind of productions by them, and it will be helpful फॉर इंक्रीजिंग आवर वेल्थ। वो हमारे लिए धन के अवसर को बढ़ाने का काम करते। इन दैट चैप्टर वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू डू फार्मिंग, हाउ वी कैन अवेल मैन पावर रिसोर्सेज फॉर फार्मिंग, लाइक दैट the author wants to clarify that the rich farmers are capable to hire laborers for farming, but जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो फार्मर्स होते हैं, they are not in position to avail on rental basis labor for farming, so they are preferring themselves only to involve in the farming segment. And the most important thing what we discussed under the economic section in previous session, that I told it to you that economics is nothing but it is completely based upon that situation, that you have to know the relationship between production and consumption. Definitely I am hoping that you are recalling my yesterday's session speech, that if the production will greater than the production than consumption, then definitely we will in position to export, and if we will export our material, then definitely we will able to or capable to generate revenue, and that generated revenue is helpful for enhancing our lifestyle. एकदम बिल्कुल नटशेल में मैं बता रहा हूं। जब उत्पादन ज्यादा होगा, खपत कम होगी, तो आप जो उत्पादन किए उसमें से अपने लिए आवश्यक जो आपकी खपत है उतने सामान को आप रख लेंगे, और जो अधिशेष बचेगा, जो एक्सेसिव प्रोडक्ट्स बचेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। एंड जब सेल आउट करेंगे डेफिनेटली वी विल गेट सम मनी, और वो पैसा जो है आपके जीवन शैली को बदलने में काफी कारगर साबित। सो एक्चुअली दिस इज द नटशेल समरी ऑफ द चैप्टर। आफ्टर हैविंग डिस्कशन ऑफ दीज थिंग्स, डेफिनेटली आई एम होपिंग ऑलमोस्ट आई एम कैपेबल टू कवर ऑल द इंटरनल फैक्ट्स अवेलेबल इन द चैप्टर। ये चीज सही है। अभी जो सबसे बड़ी बात है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करना और एग्रीकल्चरल वर्क में पार्टिसिपेट करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एम आई करेक्ट और नॉट? माइट बी पॉसिबल दैट यू विल जस्ट try to ask it to me that sir, it sounds good if you will give me the complete if you will explain the complete thing with an example। कैसे सर, कुछ उदाहरण के साथ बताइए जो अच्छा से समझ में आए। अब एक चीज देखो भाई, हम लोग हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश वाले, मैदानी इलाकों में रहते हैं, कृषि कार्य से जुड़े हुए रहते हैं। आप अगर महानगरीय सभ्यता में या शहरी सभ्यता में रह रहे हैं अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली मैं उम्मीद और दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके परिवार, पिताजी अगर रोजगार या व्यापार कर रहे हैं, दादाजी, आप गांव से जुड़े हुए होंगे। डेफिनेटली आपको गांव जाने का मौका मिलता होगा।
आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। अब आप गांव जाकर देखो, आपके दादाजी खेती करते हैं, ठीक है, यू विल टेल इट टू मी दैट यस सर माय ग्रैंडफादर इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ओके, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस थिंग। लेकिन आप ये पाते होंगे कि वो ऐसा नहीं है कि कृषि कार्य खुद ही करते, कृषि कार्य का नेतृत्व करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं धान राइस की बात कर रहा हूँ, वो जो सीड्स का मड में छींटना, छोटे छोटे पौधों का होना, फिर उसको निकालना, फिर उसको एक जगह रखना, फिर दूसरे खेत में, दूसरे एग्रीकल्चरल लैंड में ले जाके वेटलैंड में डालना, समय समय पर उसमें फर्टिलाइजर्स का छिड़काव, फिर प्रिपेयर हो जाने के बाद कटिंग एंड थ्रेशिंग, वो काम हम लोग खुद नहीं करते। इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें लीडर अलग हैं, जिनके खेत में खेती होती है, और एक खेत में खेत के मालिक एक होते हैं, लेकिन उस खेत में काम करने वाले मजदूरों की संख्या, वर्कर की संख्या मोर देन 10-15 होती है। इट मीन्स व्हाट? It is also a big source of employment. And now what is happening that due to coming harvester, thresher and all, आज जो लगातार कृषि कार्य से लोग जुड़े हुए थे उनके अवसर कम हो रहे, हम उनके तरफ नहीं सोच पा रहे। सोचना है, समुचित विकास होना चाहिए, कंप्लीट ग्रोथ होना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल वर्क से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समस्याएं बढ़ी हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर कम हुए हैं। एंड ड्यू टू दैट व्हाट इज हैपनिंग फॉर फाइंडिंग न्यू जॉब्स एंड ऑल, बिकॉज अब वो एकाएक तो कंप्यूटर चला नहीं सकता है, दे आर नॉट कैपेबल टू रन बिजनेस। सो आज यह पलायन का एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है, माइग्रेशन का बहुत बड़ा कारण। एंड if you are having TV and if you are having the connection with listening news and all, आप सुनिएगा कि पहाड़ी इलाकों में इसी के कारण वहां से लोगों का पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है। दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर मदरलैंड। क्यों? चूंकि रोजगार सभी को। डेफिनेटली बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी, one thing again is very clear, in which the author wants to explain that in the current scenario for non-agricultural work we are not having so much opportunities. गैर कृषि कार्यों के लिए, कृषि से हटकर, चूंकि कृषि कार्यों में मैंने कितना बताया, 75% लोग भागीदारी में है, 25% गैर कृषि कार्य में है, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में। इट मीन्स व्हाट? It means they are not having proper opportunity or good opportunity to move or to migrate from agricultural work to non-agricultural work due to resources. अभी वैसे अवसर, वैसे व्यापार एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण कि वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तरफ पलायन करते हैं। सो डेफिनेटली बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी, the content writer wants to explain that they want some more opportunities in the non-agricultural area. वो चाहते हैं इस बात से ताल्लुकात करवाना, इत्तफाक रखवाना कि भाई एक चीज को आप समझिए कि गैर कृषि कार्यों में भी रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न। In fact, it's fact that less capital should be required for getting involved in non-agricultural work. कारण स्पष्ट है ना। एक चीज समझो, किसी फैक्ट्री में तुम जा रहे हो, अभी एक कृषि करनी है, तो कृषि करनी है, में क्या करना होगा? खेत तैयार करवाना है, उसमें पानी पटवन देखना है, मतलब इरिगेशन देखना है, वी हैव टू बाई सीड्स, वी हैव टू बाई फर्टिलाइजर, वी हैव टू अरेंज मैन पावर रिसोर्सेज, वी हैव अगेन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द क्रॉप्स वी हैव टू कट देम, वी हैव टू फाइनलाइज देम, और बहुत सारे काम करने होते हैं, और पैसे तो लास्ट में मिलने हैं। सो अ लार्ज अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर द गेटिंग इन्वॉल्वमेंट इन द एग्रीकल्चरल वर्क।
लेकिन अब कोई पटना जाकर और XYZ शॉपिंग मॉल में काम करना शुरू कर देता है, उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? एक छोटी सी राशि जो 15 दिन तक, 1 महीने तक उसके रहने के लिए पर्याप्त है, बिकॉज आफ्टरवर्ड ही विल गेट द सैलरी एंड ही विल एंजॉय। तो इसमें लेस कैपिटल, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। अब हो सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज को नहीं समझकर आपको इस तरह से समझिए कि नॉन एग्रीकल्चरल वर्क है, अभी खेत हमको कुछ नहीं करना है, गांव में ही रहना है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल वर्क करना है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, 50,000 रुपए लोन ले लिए बैंक से, उससे कोई बिजनेस शुरू कर दिए, 500 रुपए डेली आने लगा, 15,000 रुपया मंथली हो गए। लाइक प्लेट मेकिंग, डेयरी भी है ना। एक गाय ले ली, एक गाय कितने की मिली? 30,000 की मिली। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। अब वो गाय 10 लीटर दूध करती है। दूध कैसे है? 40, 400 रुपीज, 200 रुपीज आप निकाल दो मेंटेनेंस एंड ऑल में, फूड्स वगैरह में पर डे। अब वो कितना बच गया? 200 रुपीज। मतलब क्या हुआ? यू इन्वेस्टेड ओनली 30,000 एंड you will start earning of profit, not earning of 6,000। इसमें ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। लेकिन मैं इस स्टोरी के से अलावा भी एक बात बताता हूं। आज किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने कल भी कहा था आपको, जो पैसा उनको मिलना चाहिए वो पैसा बीच के लोग लेके चले जाते हैं। गेहूं के उत्पादन करने वाले किसानों को पर्याप्त राशि नहीं मिलती है, लेकिन विभिन्न प्रकार के उद्योगपति जो उस गेहूं से आटा बनाकर पैकेजिंग कर बेचते हैं, दे आर सेलिंग देयर व्हीट फ्लावर 30-35 रुपीज के जी, एंड द रेट ऑफ द व्हीट इज 15 to 20 रुपीज। दे आर गेटिंग द प्रॉफिट्स, दे आर जस्ट हैविंग ग्रैब ओवर द प्रॉफिट रेट। वो हमारे प्रोड्यूसर्स को नहीं मिल रहा, और ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। एंड डेफिनेटली आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन और डिस्कस दीज थिंग्स बिकॉज आप ही में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में आने वाले समय में जब बड़े होंगे तो कुछ ऐसा चीज बनाएंगे जिससे कि उनको, उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स स्टार्टेड वर्क, दे आर preparing a platform for selling and buying the agricultural products, and with the help of that little bit, मैं अभी पूर्णतः नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ तो सुधार हो रहा है, कुछ ज्यादा पैसा किसानों को मिल रहा है। एंड फॉर ऑल दिस थिंग्स, एक्चुअली नॉट फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, फॉर नॉन एग्रीकल्चरल वर्क, गवर्नमेंट इज स्टिल डूइंग हिज लेवल बेस्ट। दे आर गिविंग मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, various kind of opportunities are given by government with the help of nationalized banks for the people of India to start something for themselves. So now we can't say that we are not having too much opportunities given by the government. Definitely we are getting some opportunities by the government, but the fact is what? We have to gain, we have to grab the opportunity. आपके दरवाजे पर आके मौके नहीं मिलते हैं, मौकों को उठाना पड़ता है, मौकों को चुराना होता है, आपको पकड़ना है मौकों, और तभी आप प्रगति कर सकते। एंड फॉर कंप्लीट, अगर आप पूरा सुधार चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, देन डेफिनेटली वी हैव टू इंप्रूव the transportation system as well as electronic system as well as communication system। हमें हर चीज से सुधारना होगा। देखो भारत का विकास, भारत के किसान, देखो एक चीज मैं पूछता हूँ, थोड़ा कभी कभी उत्साहित होते हैं क्योंकि चीजें बहुत अच्छी हैं जो आज चर्चा में हुई। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, भारत की आत्मा कहाँ बसती है? हिंदी पढ़ते हैं ना, हमारा देश भारत, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। मैं 3 वाक्य बोलूंगा जो बचपन से मुझे भी पढ़ाया गया, आपको भी पढ़ाया जा रहा होगा और आगे भी पढ़ाया जाएगा।
क्यों? राष्ट्रवाद सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत गांवों का देश है। ये सब 3 लाइन है जो है। तो भाई गांवों को शहर से जोड़ दो। गिव द प्रॉपर कनेक्टिविटी टू विलेज एंड इन बिटवीन विलेज एंड टाउन्स। जब यातायात का साधन सुगम हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, तो खेतों में पड़ा हुआ अनाज रखे रखे सड़ेगा नहीं। द बायर विल रीच टू द विलेज एंड दे विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, दे विल परचेज ऑल द एग्रीकल्चरल क्रॉप। संचार अगर सुधर गया, कम्युनिकेशंस अगर सुधर गए, then simply we will take a call to one of my friend, those who are also getting involved in the production of agricultural crops, कि भाई तुम्हारे यहाँ गेहूं का क्या भाव चल रहा है? तो इतना चल रहा है, मेरे यहाँ इतना चल रहा है। अब उसने कहा 1600 चल रहा है, मैंने कहा 1300 चल रहा है। मैंने ट्रक वाले से बात की, उसने बताया कि हाँ मैं इतनी क्वांटिटी लेके जाऊंगा वहाँ और आपको लगभग पर केजी 1 रुपये पड़ेगा। आपने जोड़ा तो आपको लगा कि 1300 मिल रहा है, 1 रुपये और खर्च हो जाएंगे। यहाँ है 1300 में बेच देना है, वहाँ है कि अब उस पर 1 रुपये और बढ़ गया, मतलब अब हो गया कि आपको नियम से 1200 हो गया, लेकिन वहाँ आपको 1600 मिल रहा है। तो अरे 1300 में 100 और जोड़ दिए, 1400 हो गया, 200 और हमको एक्सेसिव प्रॉफिट मिला ना। सो डेफिनेटली वी जस्ट वांट टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट को मत रिस्पॉन्सिबल हम लोग दे सकते हैं। हमें इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का निर्माण करना होगा ताकि हम जितने भी किसान भाई बंधु हैं वह एक प्लेटफॉर्म पर अपने वस्तुओं का मूल्य तय कर सके। कोई आकर आपसे कुछ नहीं कर सकता है। वह आज एक मैं चर्चा करता हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती थी, बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्यों आज नहीं दिख रहा है? हाँ दिखता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो उसमें महाराष्ट्र में, गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बैंक्स जो है उनको बंद कर दिया। तो बैंक खोलने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी था क्या? हम लोगों ने क्या किया? हम लोग भी 50 गांव के लोग मिलते और एक बड़े व्हीट फ्लावर मिल की स्थापना करते। हम खुद ही गेहूं का उत्पादन करेंगे, हम खुद ही आटा बनाएंगे और उसको सेल आउट करेंगे। डेफिनेटली द प्राइस ऑफ दैट व्हीट फ्लावर वो बहुत कम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट अदर प्राइसेस जो कि लाइजनर, जो बीच वाले लोग बनाकर और उससे आपका प्रॉफिट ले रहे हैं। So we are also having lot of possibilities to improve ourselves, and the author just wants to explain these things. They just want to give you the sensitivity. वो आप में एक सजगता जनरेट करना चाहते हैं। That's the motto of this chapter. And for getting enhancement in all these works, these things definitely we have to do as soon as possible. For the production of agricultural crops, one more thing what we have to, हमें सिंचाई के अवसर और दुरुस्त करना, और सिंचाई के अवसर दुरुस्त करने के लिए सिर्फ जमीन से जल निकालना नहीं है। We have to enhance the speed of plantation. हम वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, हम हरियाली उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और वही हरियाली फिर जल के स्रोत को ऊपर लाने का काम करेंगे। अगर हम सिंचाई युक्त जमीन जितना ज्यादा से ज्यादा बना सके, कृषि कार्य में उत्पादन उतना ही बढ़ता है। क्योंकि इरिगेशन, पानी बहुत बड़ी समस्या है आज, तो हमें नैसर्गिक तौर, नेचुरल तौर पे सिंचाई के अवसरों को खोजना कि किस तरह से किया जा सकता। These are the content of your chapter. I am very hopeful that you understand each and everything. It's my request to you that make complete notes of this chapter in your language, and afterward
go to your reference book, collect some more informations from that book. CBSE है भाई, मजाक नहीं। ज्ञान तो आपको बहुत खोजना हो, सिर्फ मेरे 25 मिनट आधे घंटे लगातार डेली बोलने से कुछ नहीं होगा। इफ यू विल नॉट स्टडी यू विल नॉट गेट मार्क्स, सिंपली याद रखें। क्वेश्चन आंसर कीजिए, रेफरेंस बुक से, ऑब्जेक्टिव से याद कीजिए, रिमेंबराइज ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।